So far you have learned a lot of things and I just want to give you a quick breakdown of क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं। आपने डैशबोर्ड सीखा है, आपने लॉगिन करना सीखा है, आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा है। These are not easy things, and as we head on to our new lesson in which you will learn how to add images to your posts and pages, I want to congratulate you. I want to thank you for being a part of this amazing DG Skills community. और याद रखिएगा कि इस DG Skills community का part बनने के लिए you can join us on our learning management system, also known as the LMS. This is a community for you. This is a community by you. This is a community of you. जिधर आप एक दूसरे के साथ collaborative manner में DG Skills और WordPress की सारी skills और freelancing की skills सीख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। आपने कभी सुना है कि a picture is worth more than 1,000 words? Obviously सुना होगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्या रीज़न है कि एक इमेज 1000 अल्फाज से ज़्यादा की कहानी बयान कर सकता है? Why are images so important? उसकी कुछ रीज़न ये है कि images are visuals. Images are a visual connection to your mind, to your spirit. और ये जो mind और spirit का connection है, that is what makes images so powerful. And that's why आप लोगों को अपने phones पे pictures लेने का इतना ज़्यादा शौक है. So adding images and other document or media such as files, videos or PDF is extremely easy within WordPress. बहुत ही आसान तरीके से आप ये files WordPress में ऐड कर सकते हैं, जिसके तरीके हम आपको आगे जाके बताएंगे. It's very easy. Media library is that central repository which helps you manage images and other files. तो WordPress में आप जहाँ ये सारी files को manage करेंगे उसे हम media library कहते हैं और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे एक्सप्लोर करेंगे. So now the question is, now the very simple and very obvious question is कि आप images को या आप pictures को कैसे ऐड कर सकते हैं WordPress में? How can you easily insert or add images? Because again, images are worth more than 1,000 words. So there are two easy ways to do this. WordPress आपको ये functionality देता है कि आप दो आसान तरीकों से WordPress में images ऐड कर सकते हैं और इन तरीकों के अलावा भी there are far more ways, but we want to tell you the easiest of ways. So उसमें से एक simple तरीका is through the add media button. जब भी आप WordPress की कोई भी post खोलेंगे या कोई भी पेज खोलेंगे या कोई भी एक custom post खोलेंगे, आपको वहाँ पे add media का एक बटन नज़र आएगा. This button is your window, is your opportunity to add anything, especially images to WordPress. So ये तो हो गया एक तरीका, बड़ा simple, बड़ा easy. Add media का जो बटन है वो आपने देखना है, उस बटन को देखते ही आपने क्लिक करना है and from there you can add images. लेकिन एक दूसरा तरीका है, ये WordPress में functionality अभी recently आई है. That functionality allows you to simply drag and drop images from your Windows folder directly onto WordPress. So बड़े ही simple तरीके में आप क्या करेंगे, आप image को click करेंगे, आप image को drag करेंगे and from there you will be able to add those images. So now the question is कि जब आप add media का बटन क्लिक करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा होगा एक you will see a dialog box which says insert media. और ये जो dialog box है, it has a lot of different options, but essentially what it's asking you to do is कि अगर आप किसी भी तरह का कोई एक image add करना चाह रहे हैं
तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से ही ब्राउज करके इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव ऑफ एडिंग इमेजेस टू वर्डप्रेस। सो आपके जहन में एक क्वेश्चन जो शायद आया होगा, और बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे साथ साथ, और उनका हम जवाब भी देंगे, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी करेंगे। वन क्वेश्चन इज, कैन आई अपलोड इमेज ऑफ एनी साइज? क्या मैं किसी भी साइज का एक इमेज अपलोड कर सकता हूँ? सो इसका जवाब वैसे तो है यस, लेकिन आपने ख्याल करना है कि जो भी होस्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक इमेज का मैक्सिमम फाइल साइज होगा जिससे बड़ा इमेज आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। तो यू हैव टू कीप दैट मैक्सिमम लिमिट इन माइंड। वन एग्जाम्पल इज कि अगर आप कोई 6 या 7 MB का इमेज अपलोड करने लगे हैं सो शायद वो हो जाए, लेकिन अगर आप कोई 20 MB का इमेज अपलोड करने लगे हैं तो वो नहीं होगा, और अगर हो भी गया दैट विल नॉट बी गुड बिकॉज इट विल यूज सर्वर रिसोर्सेज। तो इसका थोड़ा ख्याल रखें, इमेज को कंप्रेस कर लें और छोटे इमेजेस को ऐड करें। Another question is, can I upload an image of any format? वर्डप्रेस कुछ मेजर फॉर्मेट्स हैं, PNG, JPEG, जिनको और भी 2-3 हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। सो मेक श्योर यू अपलोड इमेजेस विच आर ओनली ऑफ अ सर्टेन फॉर्मेट। जब आप इमेजेस अपलोड कर लेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा विच इज़ वेरी विजिबल टू यू हियर, और आपको भी हम लाइव भी दिखाएंगे। दैट डायलॉग बॉक्स विल गिव यू ऑप्शंस ऑफ एडिटिंग एंड सीइंग कि क्या क्या इमेज में वो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल करना चाहिए। सो नाउ वी विल ऐड एन इमेज टू वर्डप्रेस। सो मेरे साथ रहिएगा, हम लॉग इन करेंगे djskills sadhamid.000webhostapp.com। हम साइट खोलेंगे और साइट खोलते ही हम इस पे लॉग इन करना चाहेंगे। सो जैसे ही लॉग इन करेंगे हमें क्या नज़र आएगा? डैशबोर्ड। एंड व्हाट आई कैन डू इज़ कि आई कैन क्रिएट अ न्यू पोस्ट राइट फ्रॉम हियर। मैं न्यू पे जाता हूँ टूल बार को यूज़ करते हुए, एंड आई विल क्लिक ऑन पोस्ट। पोस्ट का बटन मैं दबाऊँगा तो एक नई पोस्ट मेरे सामने खुल जाएगी, और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि हमने अपने पिछले लेसन में, याद होगा आपको, TinyMC इंस्टॉल किया था, उसकी वजह से हमारा टूल बार थोड़ा सा इन्हेंस हो गया था। सो व्हाट आई विल क्विकली डू इज़ आई विल डिसेबल TinyMC। मैं क्यों इसको डिसेबल कर रहा हूँ? सो यू कैन सी व्हाट अ पोस्ट लुक्स लाइक विदाउट द TinyMC टूल बार। और मैं और भी प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करूँगा, सो यू कैन ओनली सी कि हम इस वक्त क्या चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। तो नई पोस्ट पे क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस का पुराना टूल बार यहाँ पे वापस आ गया है। आई हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ पोस्ट, एंड आई कैन जस्ट से दिस इज एन इमेज पोस्ट, एंड हियर आई हैव द ऑप्शन ऑफ क्लिकिंग ऑन ऐड मीडिया। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ऐड मीडिया पे क्लिक किया है मेरे पास एक विंडो खुल गई है। दिस विंडो अलाउज मी to upload any kind of file or any kind of images. कुछ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कर सकता हूँ टू सी कि अगर कोई इमेज ऑलरेडी ऐड हुआ है तो उसको मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हाउ कैन आई अपलोड न्यू इमेजेस? सो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है टू सिलेक्ट फाइल। सो आई जस्ट क्लिक सिलेक्ट। मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे मैंने फाइल्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, एंड वहाँ से जो मुझे लेटेस्ट इमेज अवेलेबल है मैं उसको अपलोड पे क्लिक करूँगा, एंड यू विल सी दैट नाउ इट्स बीइंग अपलोडेड लाइव एंड इट हैज़ जस्ट बीन अपलोडेड। और इस अपलोड के बाद मेरे पास राइट पे कुछ ऑप्शंस भी आ गई जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑटोमेटिकली दैट इमेज हैज़ मूव्ड फ्रॉम अपलोड फाइल्स टू द मीडिया लाइब्रेरी। क्लिक ऑन इंसर्ट, एंड आप देखेंगे कि वो मुझे लाइव यहाँ पे अब नज़र आ रहा है कि इमेज इंसर्ट हो गया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट एंड ईजी वेज टू ऐड एन इमेज। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो आई कैन क्लिक ऑन ऐड मीडिया अगेन,
अब आप देखेंगे वो मुझे मीडिया लाइब्रेरी में शो कर रहा है कि कौन कौन सी इमेजेस हैं जो यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं. So what I can simply do is I can simply click on a previous image जो कि already uploaded था और उसको यूज़ करते हुए I can just click on insert into post. जैसे ही मैंने insert into post किया आप देखेंगे कि वो image सामने ऐड हो गया. And just to give you a quick idea कि ये image सामने दिखता कैसा है, I'm going to click on save draft and I'm going to open this up on a new page so you can see कि ये image दिखता कैसा है. So this is how the image looks. But जिस तरह मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था image add करने का कि आप directly अपनी Windows folder पे जाके आप files में जा सकते हैं and you can select an image and you can just drag and drop और आप देखेंगे कि live image वो upload हो गया. And again I click on insert and after clicking on insert I click save draft and I will see कि ये image दोबारा add हो गया and you can see it in the forefront as well. But I want to do something more now. आप ये wonder कर रहे होंगे कि मैं और क्या करना चाह रहा हूँ. I want to add multiple images at once and that I can again do with WordPress. So I'll just click on files Windows के यहाँ पे और आपका जो भी एक folder है जिसमें आपके पास multiple images हैं तो मैं आपके सामने I want to add multiple images. तो मैं सारों को drag करूँगा और मैं drop पे click करूँगा and you will see automatically WordPress will recognize and WordPress will add all those images. So इसमें ये हमारा साथ रहा in understanding कि आप WordPress में images कैसे add कर सकते हैं. We'll be doing more in future lessons. हमारे साथ रहिएगा.